Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the topics are Army tightens grip on Pakistan as Imran Khan's popularity wanes. Top US general apologizes for being at Trump church photo shoot. Trump faces backlash over rally in Tulsa on June 19. Financial updates and much more. Let's start with news in brief. The United States has surpassed 2 million confirmed cases of the coronavirus. The grim milestone, by far the highest reported total in the world, was reached less than 5 months after the first reports that the virus had reached American soil. As many as 10,877 new cases and 417 deaths were reported today, taking the total number of deaths in the US to 113,000. New cases have declined in places such as Illinois, Michigan, New York, and Washington, states that recorded higher infection rates in the first wave of the US outbreak. But a new wave has emerged largely in states that previously had lower rates of infection. Cases in states such as Arizona, Arkansas, California, Florida, North Carolina, Oregon, South Carolina, Texas, and Utah have been on the rise since just before Memorial Day, when many states started to ease stay-at-home restrictions. The same states have also had a rise in hospitalizations at the same time. The localized surges have raised concerns among experts, even as the nation's overall case count early this week rose just under 1%, the smallest increase since March. More than 7.4 million cases and 420,000 deaths have been reported worldwide. Latin America and the Caribbean have now recorded more than 70,000 deaths due to COVID-19. The European Union has urged all its member countries to start lifting travel restrictions on their common borders from next week, saying that the closures they introduced to tackle the coronavirus do little to limit its spread. US consumer prices dropped in May for the third straight month as the coronavirus pandemic pushed the American economy into a recession. According to the Labor Department, consumer price index fell 0.1% last month after tumbling 0.8% in April and 0.4% in March. Amazon has banned police use of its facial recognition tech for a year. पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि आर्मी जनरल्स के हाथ में कमांड आ गई है, ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं, पुराने जो रिटायर्ड हैं, फॉर्मर और करंट मिलिट्री ऑफिशियल हैं, वो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट रोल्स में देखे जा रहे हैं, जैसे स्टेट ओन्ड एयर करियर उसको रन करना, पावर रेगुलेटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो लीड कर रहा है पाकिस्तान का पेंडेमिक रिस्पॉन्स, और इसमें से 3 अपॉइंटमेंट्स पिछले 2 महीने में हुई हैं। अब मिलिट्री का हाइटन प्रोफाइल आ रहा है उस समय जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देख रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी और उनका इन्फ्लुएंस वो घट रहा है। वजह ये है कि स्लोइंग इकोनॉमी है, हाई कंज्यूमर प्राइसेस हैं, करप्शन इन्वेस्टिगेशंस हैं दैट इन्वॉल्व हिज क्लोज एड्स। अब एनालिस्ट्स के मुताबिक इमरान खान की पार्टी के लिए आर्मी की सपोर्ट क्रिटिकल है। इमरान खान की पीटीआई पाकिस्तान तहरीर इंसाफ पार्टी जो है उसकी 46% सीट्स हैं पार्लियामेंट में, और वो रिलाई करते हैं स्मॉल कोलिशन पार्टनर्स अपनी गवर्नमेंट बनाए रखने के लिए। तो ऐसे में आर्मी की सपोर्ट उनके लिए क्रिटिकल हो जाती है, और ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और डायरेक्टली रूल किया है उसने कंट्री को फॉर लार्ज पार्ट्स। 70 साल की हिस्ट्री में ज्यादातर मिलिट्री रूल रहा है काफी पार्ट के लिए। अब इमरान खान ने प्रॉमिस किया था जब 2018 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने कि नया पाकिस्तान उभर कर आएगा, और अब वो क्या कर रहे हैं कि करंट और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स को की पोजीशंस पर ला रहे हैं। अब जैसे जैसे मिलिट्री ऑफिशियल्स वो की पोजीशंस पर आ रहे हैं तो सिविलियंस की अपॉर्चुनिटी जो हैं वो कम होती जा रही हैं।
इसलिए जो मिलिट्री का रोल है गवर्नेंस में वो बढ़ता जा रहा है और उनका कंट्रोल जो है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा, विजिबल है और जो नहीं विजिबल है, लग रहा है कि उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ये शिफ्ट देखा गया जब कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट की वायरस ब्रीफिंग्स होती थी स्टेट टेलीविजन पर, तो यूनिफॉर्म्ड करंट आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो असिस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को पेंडेमिक रिस्पांस में। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं और वो ओवरसी कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन $60 बिलियन की पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स की एज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उनके कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं और वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 आर्मी लॉयलिस्ट जो हैं वो कैबिनेट में इस वक्त जो हैं वो डिक्टेटर टर्न प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे जो 2008 में खत्म हो गया था। इनमें से इंक्लूडेड हैं इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह और अब्दुल हफीज शेख जो इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर हैं। अब इतनी ग्रेट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट जो है उसको सपोर्ट कर रही है सिविलियन गवर्नमेंट के एडवाइजर भी। तो कुछ लोग जो सिविलियन गवर्नमेंट में हैं वो भी इसके हक में है कि मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट कर ली जाए। जैसे जेगम रिजवी एक मेंबर है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम टास्क फोर्स के। अब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम टास्क फोर्स जो है वो इंचार्ज है कि मेन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है बिल्ड कर रहा है लो कॉस्ट हाउसेस, कम कीमत पर जो घर बनाने में लगा हुआ है टास्क फोर्स, सिविलियन प्रोजेक्ट है। उसमें भी 2 आर्मी ऑफिसर्स को पिछले महीने अपॉइंट किया गया। जो लोग ऑलरेडी उस टास्क फोर्स में है सिविलियंस, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर हम आर्मी के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, आर्मी का अच्छा सिस्टम होता है, तो हमें भी ये भरोसा हो जाता है कि काम हो जाएगा। तो इसीलिए जो सिविलियंस अपोज नहीं कर रहे, बल्कि वो चाह रहे हैं कि आर्मी को इंक्लूड किया जाए ताकि काम हो जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूछा गया था उनकी इलेक्शन से पहले कि क्या वो सेना की कठपुतली हैं। ऐसे पे वो बौखला गए थे और उन्होंने कहा कि ये आरोप बिल्कुल बेतुकी साजिश है। इस साल वो कह रहे हैं कि आर्मी इज स्टैंडिंग विद मी। अब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है पेंडेमिक से, उससे टेंशन्स और बढ़ेंगी। पाकिस्तान जो है वो मोस्ट इन्फेक्टेड नेशन है एशिया में आफ्टर इंडिया और वहां पर है 119,000 कोरोना वायरस केसेस विद अबाउट 2,300 डेथ्स। तो ऐसे में इन्फेक्शंस आना, इकोनॉमी पर असर होना, और ये फोरकास्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो फर्स्ट टाइम इन 68 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी 1.5% श्रिंक होगी इन द ईयर एंडिंग जून। पाकिस्तान ने डेट रिलीफ के लिए लोन लिया हुआ है $1.4 बिलियन का पेरिस क्लब और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अप्रैल में लोन लिया है और पाकिस्तान उन कंट्रीज में है विच इज सीकिंग डेट रिलीफ। तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है। जब कोरोना वायरस की एस्केलेशन हुई तब सवाल उठे कि आर्मी का रोल किस तरह से है इन रनिंग द गवर्नमेंट। इमरान खान ने पहले ये कहा जब शुरुआत हुई मार्च में कि जो सिटीजन्स हैं वो काम रहें, उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, और उसके बाद अगले दिन एक आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने अनाउंस किया लॉकडाउन। और जो प्रेस स्टेटमेंट आती हैं कंट्री के वायरस नर्व सेंटर में जो चेयर कर रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर असद उमान, तो जो भी प्रेस स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं आर्मी के मीडिया विंग द्वारा और बिल्कुल बायलाइन लोगो जो है वो आर्मी के मीडिया विंग का होता है। इमरान खान से पूछा गया था एक बार, रिपोर्टर्स ने मार्च में पूछा था कि हु इज इन चार्ज हियर, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया एंड ही वाज विजिबली अनॉयड, हैरान परेशान थे। अब लेट मई में एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान, उन्होंने डिफेंड किया नेशनल करियर की परफॉर्मेंस और मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया था फाइनेंशियल कैपिटल कराची में। तो उसके बाद एविएशन मिनिस्टर ने डिफेंड किया कि नेशनल करियर की परफॉर्मेंस और मिलिट्री लीडरशिप का रोल। उन्होंने कहा इट्स नॉट अ क्राइम टू अपॉइंट पीपल एफिलिएटेड टू द मिलिट्री। तो इस तरह की बातें उभर कर आ रही हैं कि मिलिट्री का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब मिलिट्री का रोल बढ़ेगा
तो इमरान खान जो हैं उनका रोल घट सकता है, क्योंकि करंट और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी बैक्ड पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, उनकी ज्यादा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर हो जाएगी तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पावर है वो डिमिनिश हो जाए और उनके ऊपर फर्दर प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। अब आर्मी ने पहले ही सिग्नल कर दिया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जिस तरह की इमरान खान की गवर्नमेंट हैंडल कर रही है कोरोना वायरस लॉकडाउन, और वो इस बात पर भी खुश नहीं है आर्मी वाले कि किस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैंडल किया जा रहा है, या पंजाब जो लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर गवर्नेंस हो रही है। अब चीफ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है वो ओपनली पुश कर रहे हैं कि टफर लॉकडाउन होना चाहिए, और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स अज्यूम कर रहे हैं रोल एज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एंड टॉप सीपीईसी एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मिलिट्री जो है पिछले साल से उन्होंने एक्टिव रोल लेना शुरू कर दिया पॉलिसी मेकिंग बियॉन्ड फॉरेन एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। आर्मी चीफ कमार जावेद बाजवा वो मिल रहे हैं टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ प्राइवेटली कि किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया एक लॉ जनवरी में, जिसमें आर्मी चीफ बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई स्टार्टिंग नवंबर 2019, और उनको बना दिया गया मेंबर ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक बोर्ड। काफी सारी डेमोक्रेसीज अपॉइंट करती हैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पर, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब सिविलियंस का अधिकार कम हो जाता है, और यहीं पर रिस्क हो जाता है डेमोक्रेसी को कि रिटायर्ड जर्नल जो हैं कई बार वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय देयर फॉर्मर बॉसेस देन देयर करंट बॉसेस, और डेमोक्रेसी तब प्रॉपर्ली सर्व नहीं होती। और इसी तरह की कुछ सिचुएशन उभर रही है पाकिस्तान में कि मिलिट्री के पास इतना कंट्रोल आ रहा है, तो क्या सिविलियन अधिकार कम होता जाएगा? चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो गलती की उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के साथ जब वो गए हिस्टोरिक वॉक टू सेंट जॉन्स चर्च आफ्टर पीसफुल प्रोटेस्टर्स वर फोर्सिबली क्लियर्ड फ्रॉम देयर। उन्होंने कहा मुझे वहां पर नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेटमेंट है कि चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने कहा है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा, एज सीनियर लीडर्स एवरीथिंग यू डू विल बी क्लोजली वॉच्ड and I am not immune. As many of you saw the result of the photograph of me at the Lafayette Square last week that sparked a national debate about the role of military in civil society. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in the domestic politics. As a commissioned uniformed officer, it was a mistake that I have learned from, and I sincerely hope we can all learn from it. We who wear the clothes of our nation come from the people of our nation, and we must hold dear the principle of an apolitical military that is so deeply rooted in the very essence of our republic. तो बहुत ही ये important statement है। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने इस तरह की स्टेटमेंट की है। इससे और पता चल रहा है कि टेंशन बिटवीन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीनियर पेंटागन ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा उनसे गलती होगी, उनको नहीं अकम्पनी करना चाहिए था प्रेसिडेंट ट्रंप को। और वो जो फोटो ऑप की बात है उसको बहुत उछाला जा रहा है कि इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को उनके ऊपर ब्रुटैलिटी से पुलिस ने उनको क्लियर किया और ये सारे लोग गए फोटो खिंचवाने। तो इस तरह की स्टेटमेंट आना, ये लग रहा है कि रिफ्ट हो रहा है बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द सीनियर ऑफिशियल। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर जाकर आप न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंच सकें। प्रेसिडेंट ट्रंप फेसेस बैकलैश ओवर रैली इन तल्सा ऑन जून 19। प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहेवियर को काफी लोग अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, मगर किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं, उनकी पब्लिक अपीयरेंस या उनके ट्वीट, या किस तरह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब फेमस या इनफेमस हो रहे हैं।
मगर अब उनके बिहेवियर को हम अनप्रेडिक्टेबल नहीं कह सकते, उसमें एक पैटर्न है और बहुत अस्टोनिशिंग पैटर्न है। देखिए बार बार वो कुछ लफ्ज हैं जो बार बार यूज करते हैं, ट्रिमेंडस, ब्यूटीफुल, अनफेयर, ओवररेटेड, फेयर। नाराज हो जाए तो आपको पता है एग्जैक्टली कि किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, रशिया, विच हंट, इन सब पे आ जाएंगे क्योंकि वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। और किस तरह की शॉकिंग बातें करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट के इंजेक्शन होने चाहिए। तो ये अब प्रूव हो चुका है कि उनका बिहेवियर सरप्राइजिंग नहीं है और कोई भी सिचुएशन है वो सिचुएशन को और भी बदतर कर देते हैं, और भी बुरी कर देते हैं और समस्या बिगड़ जाती है। अब वो मार्च के बाद अपनी पहली कैंपेन रैली करने जा रहे हैं, मेगा रैली। मेगा रैली के लिए स्पॉट क्या चुना है? टल्सा, ओक्लाहोमा। डेट क्या चुनी है? जून 19। अब क्यों इसके ऊपर बैकलैश हो रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है दिस इज स्लैप इन द फेस टू ब्लैक पीपल। बात यह है कि टल्सा, ओक्लाहोमा में डेडलीस्ट रेस राइट्स हुए थे अमेरिकन हिस्ट्री में 1921 में। वहां पर एक स्ट्रीट है जिसको ब्लैक वॉल स्ट्रीट या ग्रीनवुड कहा जाता है, तो उस सिटी में एक सेक्शन है ये। वहां पर एक मॉब था वाइट पीपल का जिसने अटैक किया एंड दे मर्डर्ड हंड्रेड्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। बहुत से लोग इंजर हुए थे, बहुत से लोग जो हैं उनको क्रूरता पूर्वक मारा गया। वो साइट उन्होंने चुनी है और डेट चुनी है जून 19। जून 19 जो है उसको इमेंसिपेशन डे कहा जाता है क्योंकि वो कमेमोरेट करती है उस दिन जिस दिन ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया था कि स्लेव्स आर फ्री। तो इस तरह की बात क्यों की है उन्होंने? कोई भी और दिन, 364 दिन है वो चुन सकते थे और कोई भी और जगह चुन सकते थे। अब टस्ला, ओक्लाहोमा कोई स्विंग स्टेट भी नहीं है, वहां पर जाकर वो रेशियल इश्यूज एड्रेस करेंगे। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट ये थी, he is working on rectifying injustices, so it's a meaningful day to him and it's a day where he wants to share some of the progress that's been made as we look forward and more that needs to be done. प्रेसिडेंट ट्रंप जब जॉब रिपोर्ट के बारे में बात करने आए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो उन्होंने क्या कहा था कि जॉर्ज फ्लॉयड स्माइल कर रहे हैं, दैट इट्स अ ग्रेट डे। जॉब रिपोर्ट पर जॉर्ज फ्लॉयड हेवन से स्माइल कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट डे फॉर हिम एंड एवरीबडी। तो इस तरह की स्टेटमेंट ये देंगे तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट अ क्रेडिबल मैसेंजर ऑन मैटर्स ऑफ रेस। वो वेपनाइज करते हैं रेस को अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। और जब अमेरिकन रेशियल प्रॉब्लम आ रही, उन्होंने कोई भी सांत्वना के लफ्ज नहीं कहे, किसी भी तरह से उन्होंने मल्हम लगाने की कोशिश नहीं की और ऐसे में जाकर वो रेशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। अब एक पोल के मुताबिक 88% ऑफ ब्लैक वोटर्स से दैट दे डिसअप्रूव ऑफ द जॉब ट्रंप इज डूइंग इन ऑफिस। 91% disapproved of how he's handling race relations, and 88% say they would vote for Biden over Trump in a hypothetical general election matchup. अगर आज इलेक्शन हो तो 88% ब्लैक्स कहते हैं कि वो बाइडन को वोट देंगे। अब जो टल्सा की ऑडियंस है वो एक्चुअली अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है, वो लोग हैं जो परेशान हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की हैंडलिंग में कि किस तरह से उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के प्रोटेस्ट को हैंडल किया है। और वहां पर जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे कि उन वोटर्स को वापस लेकर आया जाए और किस तरह से वो कन्विंस करेंगे कि वो इक्वालिटी के लिए काम करना चाहते हैं। उनके 7 में से 10 विमेन, एक पोल हुआ था, उन्होंने बताया कि 7 में से 10 विमेन डिसअप्रूव ऑफ हाउ ट्रंप इज हैंडलिंग रेस रिलेशंस इन अमेरिका एंड अ सिमिलर नंबर 65% डिसअप्रूव्ड ऑफ द ओवरऑल जॉब ही इज डूइंग। तो टल्सा में एक्सपेक्टेड है कि ओल्डर जनरेशन आएगी, विमेन विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ लार्जर नंबर और रेस और रेशियल इश्यूज पर प्रेसिडेंट ट्रंप बात करेंगे। अब ऐसे में जो इवेंट है दैट इज गोइंग टू सिग्नल समवॉट की रिटर्न टू नॉर्मलसी हो रही है आफ्टर मंथ्स ऑफ टर्मोइल, क्योंकि एक तो पेंडेमिक कोरोना वायरस का है, ऊपर से खलबली जो मची हुई है रेसिज्म और पुलिसिंग के ऊपर, तो मैटर्स को सुधारने की बजाय मैटर्स को वर्सन कर दिया जाएगा। अब ये कई जगह से कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेशियल इक्वालिटी के लिए, उनको कह रहे हैं कि दे आर ठग्स। वो उनके साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं जता रहे, बल्कि कह रहे हैं कि उनको सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए,
जो वो चाह रहे थे कि नेशनल गार्ड है, मिलिट्री को बुला लेंगे और हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं वॉशिंगटन डीसी में, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर प्लेन्स उड़ रहे हैं उनको डराने के लिए। तो इस तरह की हरकत करें और कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को पता ना हो कि इसकी हिस्टोरिक इम्प्लीकेशन क्या है और हो सकता है ये सारा आइडिया स्टेफन मिलर का हो, जो व्हाइट हाउस के मोस्ट प्रोमिनेंट व्हाइट नेशनलिस्ट हैं। अगर ऐसी भी बात है तो जो भी उनके एडवाइजर्स हैं वो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है क्योंकि मैसिव ब्लैक लाइव्स मैटर डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं वो कंट्री भर में हो रही हैं और ऐसे में आप और जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हैं। पेंडेमिक में इतने सारे लोगों को 113,000 अमेरिकन्स हैव डाइड। ऐसे पेंडेमिक में स्टेडियम में लोगों को खचाखच भरा जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर डेमोक्रेटिक लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम अपनी रैलीज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रोटेस्ट और बात के लिए हो रहे हैं, वो हो रहे हैं टू एड्रेस स्ट्रक्चरल रेसिज्म। और ये रैली हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन में अपने जो वोटर्स हैं उनको जीतने के लिए ये रैली की जा रही है और शायद वो अपने उस वोटर बेस को इसी तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। सेनेटर कमला हैरिस ने कहा है, दिस इजंट जस्ट अ विंक टू व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, ही इज थ्रोइंग देम अ वेलकम होम पार्टी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह की भी ये एक्शंस हैं, ये कहा जा रहा है कि दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द लाइव्स एंड कम्युनिटी दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द टल्सा राइट। तो टल्सा में जो रेस राइट हुआ था वहां पर जाने गई थी और ये मैसेकर हुआ था इनोसेंट्स का 24 घंटे के अंदर अंदर, और वहां पर जाकर ये इस तरह की रैली और इस तरह के दिन कर रहे हैं, दैट इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। और कई जगह से इस तरह के मैसेजेस आए हैं कि ये मैसेज दिया जा रहा है टू एवरी ब्लैक अमेरिकन, मोर ऑफ द सेम। Time for a financial update. Stocks suffered their worst day since March, with the Dow plunging more than 1,800 points. Stocks suffered their biggest one-day pullback in 3 months today as traders grew concerned about the number of coronavirus cases increasing in some states that are reopening up from lockdowns. Shares that have surged recently for a smooth reopening of the economy led the declines. The Dow Jones Industrial Average plunged 1,861 points to close at 25,128. The S&P 500 slid 5.9% to 3,002, while the Nasdaq Composite dropped 5.3% to end the day at 9,492. The price of gold per ounce $1,754. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 97 paisa. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.